I'm very glad that people who have joined in today could join in today. So, we were discussing Shraddha and Vishwas. Hmm. And for the next perceivable few classes, I think till everybody understands it, we will be discussing this topic. श्रद्धा एंड विश्वास क्या हुआ नाक में मत खुजा लाल हो गई पूरी So, Shraddha and Vishwas. Any questions from any class? Anybody has any questions? All right. So, last time we had taken a long time to finish the class. This time we'll try and not do a recap because there was one story that I had told, but even if you don't remember it, it's fine. Let's start fresh. What is the root cause or the root of Shraddha? Bhakti is a result of Shraddha. So, what is the root of Shraddha? The end is Vishwas. The middle is Bhakti. And the starting point is Shraddha. I'll say that again. End is Vishwas. Middle is Bhakti. Starting point is Shraddha. But what is Shraddha? Does anybody know how to define Shraddha? Sonal, what is Shraddha? I'm sure you know So some. we discussed it in another class. We Okay. said Shraddha means follower of the truth. Follower. That's how we, Yeah, it's a yeah, that's small how we definition. It's a big word. seeking the truth, right? Seeking the truth. Excellent. Anybody else? Any other thoughts? What is Shraddha? Tanya, what is Shraddha, beta? Devoted. No? Anybody else? Thoughts? What is Shraddha? ये बड़ा ही अजीब सा वर्ड है बहुत लोग नाम रख लेते हैं श्रद्धा surely everybody knows somebody called Shraddha है but what is Shraddha what does it mean now इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्लू दिया हुआ है जो श्लोक है उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं कि उमा शंकर वंदे है ना श्रद्धा विश्वास रूपिणे उमा और शंकर श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप है करेक्ट यस उमा कौन पार्वती शंकर एवरीबडी नोस या हाँ लॉर्ड शंकर तो उमा और शंकर श्रद्धा और विश्वास तो श्रद्धा कौन श्रद्धा माता पार्वती ठीक है रूप क्या है श्रद्धा का माता पार्वती पार्वती किसकी पुत्री है डज एनीबडी नोज द पेरेंट्स ऑफ पार्वती we understand now we have to try to understand Parvati and this is not a Lalita Sahasranam class so we have to start from the beginning kiski putri where does she come from I might be wrong. Is it Brahmaji? no beta you're wrong Hmm. पार्वती पुत्री है पर्वत की ना हिमवान और मैना right for those of you who don't know the story Parvati is the daughter of Himalaya Himwan and Mata Maina hmm? And how did she come about? Who's the teacher of Parvati? Anybody?
Nobody knows this वो story. नारद जी। Very nice, Narad ji. Yeah. So let's go back a little bit. In Parvati didn't come to become Lord Shiva's consort in the beginning, right? Who came? First came Mata Sati. Correct? So Mata Sati किसकी पुत्री? Anybody? Google it. करो क्विक गूगल, पुलकित क्विक गूगल रिजल्ट. दीदी दक्ष प्रजापति। और आधा, वो दक्ष तो सबको पता है, आधा बोल रहे, पूरा बताइए. बिना माता के मा, बच्चे होता है क्या? माता नहीं नहीं दीदी, माता का नाम नहीं याद है। तो गूगल करो, पूरी बात पता होनी चाहिए. दक्ष, राजा दक्ष। और प्रस्तुति। वेरी गुड, वेरी गुड. So even if you got it through Google, at least when you're looking, if you're looking for the right question, you'll get the right answer. जब किसी के ओरिजिन के बारे में पूछा जाए तो माँ बाप दोनों जरूरी है. एक्चुअली तो 3 जनरेशन पीछे तक पता होना चाहिए कौन है, वरना कोई सेंस ही नहीं बनेगा कि बंदा आया कहाँ से. और प्रजापति दक्ष कहाँ से आए? प्रजापति दक्ष आए ब्रह्मा जी के पुत्र हैं. इतना उनका हमें पता है. सो ब्रह्मा जी जब कोई क्रिएशन करते हैं उसके लिए उनको कॉन्सोर्ट की जरूरत नहीं है. हालांकि सिंबॉलिकली माता सरस्वती है, मगर इट इज बेसिकली अ ज्ञान creation of knowledge. So when you manifest knowledge, all these physical beings are able to, conscious beings are able to come into the world. ब्रह्मा जी जब क्रिएशन करते हैं तो वो बिना कॉन्सोर्ट के क्रिएशन. तो ब्रह्मा जी एक, और ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति और उनकी पत्नी कौन? एवरीबॉडी? प्रस्तुति माता। प्रस्तुति माता. And then they had many children, yeah, many girls, and also Sati. Sati was the youngest daughter of Prajapati Daksh. Now Prajapati Daksh की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? प्रजापति दक्ष was considered the ruler of the entire, the king. Why was he considered the ruler? Because he was very, उनका नाम क्या है? दक्ष. He was very, दक्ष का मतलब dexterous, very capable, very solid, very astute. I'm using various words in English. Daksh can literally be translated as dexterous, but in Hindi when or Sanskrit, when you use the word daksh, it means very good at something, not only physically but also mentally. The capability is there. Correct? Am I correct? For those of you who know Hindi a little bit. किसी चीज में दक्षता या अच्छे से किसी चीज को सीखना. So your mind and your body, when they are aligned, then you are considered daksh. So mind and body is aligned, then you're considered daksh. So very strong mind to be able to control the body the way you want to control it. So प्रजापति दक्ष जो कि किसके स्वरूप है? दक्षता मतलब बुद्धि के स्वरूप है. कितनी अच्छी तीक्ष्ण बुद्धि है. करेक्ट? वेरी शार्प माइंडेडनेस. यस, एवरीबॉडी विद मी? सो प्रजापति दक्ष जो कि एम्बॉडीमेंट है बुद्धि के, जिन्होंने अपने 4 वेद पूरी दुनिया को दिए और प्रोपोगेट किए, पूरी दुनिया को सिखाए, बताए, तो बहुत शार्प बुद्धि है. और उस शार्प बुद्धि के साथ, या उस शार्प बुद्धि के साथ उन्होंने इतना यश और फेम पाया कि सब उनको प्रणाम करते हैं.
सारी इंद्रियां उनको प्रणाम करती हैं, यानी कि सारे इंद्र और देवता उनको प्रणाम करते हैं। बुद्धि बहुत अच्छी चीज है, दक्ष बुद्धि का स्वरूप, और उनको सब प्रणाम करते हैं। कौन एक प्रणाम नहीं करता? भगवान शंकर उनको प्रणाम नहीं किए, तो दक्ष को गुस्सा आ गया, और इसकी वजह से उनकी उनकी लड़ाई हुई। किसके साथ? वीरभद्र के साथ। Guys, know the story. Okay, I'll tell you the story in short. The story in short is that Daksh had many daughters, of who Sati was the youngest. And the youngest daughter usually is pampered. The younger ones will not agree, but the younger ones are pampered. In their own way, they are pampered differently from the older ones. They're pampered differently. Yeah. So the younger ones were very pampered. So this girl was very pampered very early in her life. She realized that she wanted Lord Shiva, and that was introduced to her by another Saptarishi. So she got initiated. She wanted Shiva. She went and married Lord Shiva against her father's will, because he didn't think he was appropriate. Anyways, Daksh is upset कि सती ने लॉर्ड शिवा से शादी कर ली। बहुत गुस्सा है, मगर उससे भी ज्यादा गुस्सा उनको तब आया जब एक सभा में भगवान शंकर उठे नहीं। और भगवान शंकर उठे नहीं और उन्होंने प्रणाम नहीं किया। किसको प्रणाम नहीं किया? बुद्धि को प्रणाम नहीं किया। अब आप अगर उसको लॉजिकली सोचे तो कॉन्शियसनेस का, अगर हम फॉर दोज ऑफ यू हु स्टडी योगा सूत्रस, यू नो देयर इज मन बुद्धि चित्त अहंकार, एंड देन देयर इज आत्मा, एंड देन देयर इज परमात्मा. सो परमात्मा इज सो फार ओवर आत्मा एंड देन ऑल्सो बुद्धि. हम्म तो अब ये नमस्कार करने का कोई कारण बनता ही नहीं है। कोई दक्ष भी हो तो उसको इंद्र ही प्रणाम करेगा ना। इंद्र मतलब सेंसेस, इंद्रियां, सेंसेस। तो अगर कोई बुद्धि भी है तो बुद्धि को कौन प्रणाम करेगा? इंद्र ही प्रणाम करेगा ना। लॉर्ड शिवा कॉन्शियसनेस थोड़ी प्रणाम करेगी उसको। अगर कॉन्शियसनेस ने प्रणाम कर दिया तो फिर उल्टा ही हो गया। सो कहानी के रूप में इसको बोला जाता है। तो कहानी के रूप में ऐसा है कि दक्ष ने एक सभा बिठाई, सभा में सबने प्रणाम किया, सारे देवताओं ने प्रणाम किया, मगर भगवान शंकर बैठे रहे, उन्होंने प्रणाम नहीं किया। तो उन्होंने कहा दो तरह से अपराध हो गया। एक तो मैं दक्ष, मुझे प्रणाम नहीं किया, और दूसरा ये तो सन इन लॉ है, छोटा होना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, है ना, रिश्ते से भी छोटा है, तो भी नहीं प्रणाम किया। पर दोनों ही तरह से भगवान शंकर ने उनको प्रणाम नहीं किया, जिससे कि उनको कोई पाप ना लगे, क्योंकि बड़ों को प्रणाम करने से पुण्य मिलता है। बट अगर बड़े छोटों को प्रणाम करें, अगर बड़े अपना मुकुट निकाल के नीचे रख दें छोटों के सामने, है ना, तो दैट इज कंसिडर्ड, ये छोटों के लिए पाप है। तो इसको अच्छा नहीं माना जाता। तो भगवान शंकर ने प्रणाम नहीं किया, तो दक्ष और गुस्सा हो गए, और उन्होंने भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सबको बुलाया, पर भगवान शंकर को जगह ही नहीं दी, स्थान ही नहीं दिया। और इस यज्ञ में जबरदस्ती भगवान शंकर से पूछ के, मगर जबरदस्ती उन्होंने मना किया, फिर भी सती पधारी, यज्ञ में सती आ गई। और यज्ञ में जब सती आई, अपने मायके आई, घर अपने घर आई, तो उनका सबने बहुत मजाक उड़ाया। माई खाली ठीक से मिली, बाकी कोई ठीक से नहीं मिला। और जब वो यज्ञशाला में गई, उन्होंने देखा कि सबका इंतजाम है, बस भगवान शंकर का ही कोई भाग नहीं है, कोई स्थान नहीं है। तो उनको बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने हवन कुंड में ही अपने आप को सती कर दिया।
यानी कि शी अपनी अग्नि जला के वो खत्म हो गई। और खत्म होने के बाद वीरभद्र आए, भगवान शंकर ने वीरभद्र को भेजा, नंदी को भेजा, और दक्ष का पूरा महल उजड़ गया और उसका सर काट लिया गया। और सर काट के जब सबने क्षमा मांगी, ब्रह्मा ने क्षमा मांगी, तो उसके सर पे बकरे का सर लगा दिया गया। हम्म? और बहुत अगेन वेरी symbology is like mind blowing if you deeply meditate on this. It's mind blowing. बुद्धि का सर काट लिया गया, बुद्धि का कोई काम नहीं है, और वो क्या करती है, खाली उसका एक ही काम है, मैं करना है ना, इसलिए उसको बकरे का सर दे दिया, कोई फायदा नहीं। एनीवेज, so this is the story of Sati. So Sati dies. And on the other hand, what happens on one side, जो हमारे रामचरितमानस में कहानी है कि भगवान सती और शंकर जी दंडकारण्य गए एक बार, और वहां पर अगस्त्य ऋषि ने उनको राम कथा सुनाई। और राम कथा शंकर भगवान ने तो बड़ी प्यार से सुनी, और सती माता ने सुनी ही नहीं, यो सुनी अनसुनी कर दी। और उनका क्वेश्चन वही था जो पिछली बार निरंजन ने पूछा था कि भगवान ही है क्या, भगवान, ये भगवान ही पक्का भगवान है। जब कथा सुन के निकले तो उन्होंने पूछा भगवान शंकर से कि भगवान ये तो ऐसे रो रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दंडकारण्य में उस समय कथा में क्या चल रहा था, भगवान राम सबसे रोते रोते पूछ रहे थे कि मेरी सीता कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है। और भगवान शंकर उनको मिले, उनका दर्शन किया, और दर्शन करके उनको प्रणाम किया, और फिर आगे चले। तो जब आगे चले और ये रूप माता सती ने देखा, तो वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा ये भगवान है, ये राम, ये इनका जाप करते हो आप, तो ये तो हो नहीं सकते। तो प्रभु मैं तो इनका टेस्ट लूंगी, आई विल परीक्षा लूंगी, टेस्ट लूंगी। तो भगवान शंकर हंसे, बोले अच्छा परीक्षा लेंगे आप, तो आप जाइए परीक्षा लीजिए। तो बोले आप नहीं चलेंगे? नहीं, जिसको परीक्षा लेनी हो बोले परीक्षा, हमें तो परीक्षा नहीं लेनी। तो भगवान शंकर नहीं गए। और जब सती माता गई वहां पर परीक्षा लेने के लिए, तो उन्होंने सीता जी का रूप बना लिया, और सीता माता का रूप बना के वो चली। तो सीता माता का रूप तो बनाया, पर चली आगे, जिससे राम जी देख लें। और राम जी ने जब देखा, तो पहले तो लक्ष्मण जी ने देखा वो, और वो बहुत गुस्सा हो गए, और उन्होंने बोला पता नहीं कौन राक्षसी है जो माता का रूप बना के आ गई है ना। क्योंकि माता माता का कैरेक्टर ही नहीं है, व्यवहार ही नहीं है, वो आगे चल ही नहीं सकती, वो पीछे ही चलेंगी। तो लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा है, वो पहले ही तैयार हो गए धनुष बाण निकाल के। भगवान ने शांत किया, और भगवान ने माता के चरणों में प्रणाम किया, साष्टांग किया कि माता आप अकेली यहाँ पर वन में कैसे घूम रही हैं, शंकर जी कहाँ है, भगवान कहाँ है। तो हो गया ये। और माता फिर परेशान हो गई कि उनको कैसे पता। और फिर वो इधर देखें तो राम, और उधर देखें तो राम, और उधर देखें तो राम, वो कहीं भी घूमे उनको राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम दिखाई दे, चारों तरफ राम राम। और उन्होंने फिर माता ने भगवान नारायण से, राम जी से प्रार्थना की कि मैं जान गई आप भगवान हैं, आप ये माया अपनी हटा लीजिए, मैं परेशान हो गई। तो उन्होंने प्रार्थना की, माया हट गई, माता वापस गई शंकर जी के साथ। तो शंकर जी के पास जब वो पहुंची, तो उन्होंने, मैं संक्षिप्त में बता रही हूँ, इसकी व्याख्या बाद में करूंगी, ये मैं अभी सिखा नहीं रही हूँ कहानी। हम्म पर जब वो वापस गई, तो भगवान शंकर ने बोला कि तुम सच सच बताओ, तुमने क्या देखा, क्या किया, कैसे परीक्षा ली। कि तो माता ने उस समय, भगवान ने बोला सच बताओ, फिर भी माता ने बोला कुछ नहीं किया मैंने तो प्रभु, मैंने तो गई और मैंने प्रणाम किया और आ गई। जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने प्रणाम किया, मैं प्रणाम करके आ गई। अब शंकर भगवान तो सर्व ज्ञाता है, उन्होंने जैसे ही अपनी मन की आंखों से देखा कि क्या हुआ,
और माता सती का सीता वाला स्वरूप देखा, तो वो स्वरूप देखते ही माता का भाव आ गया, तो उन्होंने मन में संकल्प कर लिया कि अब मैं इनके साथ नहीं रह सकता, क्योंकि अब तो ये माता का भाव आ गया, अब ये वापस कुछ नहीं हो सकता है इसमें। तो शरीर से उनका त्याग कर दिया, मन में संकल्प किया, बताया नहीं। हम जैसे नहीं है भगवान शंकर, उनकी कभी भी कहानी सुनो ना, बताते नहीं है किसी को कि गुस्सा हो गए या कुछ संकल्प कर लिया, ये भी नहीं बताया। हम्म। हमें तो बिना बात के भी जब बोलना होता है ना, तुमसे बात नहीं करूंगा, तो बोलते हैं, जोर 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 से बोलते हैं, आई एम नॉट गोना टॉक टू यू नाउ, आई एम नेवर गोना लिसन टू यू नाउ। थिंक अबाउट इट, दिस very simple story, but it's so deep when it comes to how we should conduct ourselves. Anyways, short story. So भगवान शंकर ने ये संकल्प ले लिया, नारायण की माया, नारायण ने जोर से आकाशवाणी कर दी कि वाह भगवान शंकर, क्या संकल्प लिया आपने, तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। और माता परेशान कि ये क्या मतलब, कौन सा संकल्प ले लिया भगवान आपने, कौन सा संकल्प ले लिया, पूरे रास्ते पूछते पूछते कैलाश तक पहुंचे, कौन सा संकल्प ले लिया, कौन सा संकल्प ले लिया। भगवान ने कुछ जवाब नहीं दिया, और फिर वो जैसे ही कैलाश पहुंचे तो भगवान समाधि में चले गए। कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग स्टोरी, बट इन शॉर्ट भगवान समाधि में चले गए। जब भगवान की समाधि कई हजार साल के बाद टूटी, तो ऊपर से वाहन जा रहे थे दक्ष प्रजापति के घर। हम्म। क्योंकि वहां पर यज्ञ का आयोजन था, और माता ने बोला कि मैं घर जाऊंगी। और भगवान शंकर ने बोला कि बिल्कुल, माँ बाप और गुरु और दोस्त और भगवान के पास जाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर जहां पर आपका आदर ना हो वहां पर जाना नहीं चाहिए, बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए। खैर फिर भी माता जबरदस्ती चली गई। उन्होंने बुद्धि से अपने तर्क लगाया कि माता के घर तो जा ही सकते हैं, पिताजी के घर तो जा ही सकते हैं। और गई, और सती हो गई। और सती हो गई तो शंकर भगवान छूट गए। तो सती होते होते उन्होंने भगवान राम से प्रार्थना की कि मेरी बुद्धि की वजह से, ये उनको सती के टाइम में ये अंडरस्टैंडिंग आई, या उसके उस अराउंड में उनको ये समझ में आया कि ये जो पिता है मेरे, जो भगवान शंकर को जगह नहीं दे पा रहे हैं अपनी बुद्धि की वजह से, अपनी ईगो की वजह से, ये संस्कार मेरे अंदर भी है, ये बुद्धि मेरे अंदर भी है, मैंने भी, मेरे अंदर श्रद्धा नहीं है, क्या है, बुद्धि है। हम्म। माता सती, माता पार्वती का पूर्व जन्म बुद्धि का जन्म है। हम्म। ये इंटेलेक्ट है। और भगवान राम से उन्होंने प्रार्थना की कि मेरे को अगले जन्म में ये बुद्धि मत दीजिए, मेरे को जड़ दे दीजिएगा, बुद्धि मत दीजिएगा। तो जड़ का मतलब, पर्वत से जड़ कुछ होता है क्या? जड़ मतलब जो हिलता नहीं है। पर्वत से ज्यादा जड़ कुछ होता है क्या? तो माता बनी पर्वत की पुत्री, जड़ एकदम, एकदम बिना हिलने वाला। बुद्धि चंचल होती है। बुद्धि का कैरेक्टर, मर्क्यूरी का कैरेक्टर क्या होता है, माइंड का कैरेक्टर क्या होता है, बहुत चंचल होती है। तो माता ने बोला कुछ हिस्सा ऐसा कुछ मत दीजिएगा जहां पर मेरी बुद्धि चले ही, आप मुझे जड़ बना दीजिए, जड़ की पुत्री बना दीजिए। और माता फिर पैदा हुई पार्वती के रूप में। किसकी पुत्री? हिमवान की पुत्री। और दूसरी मैना, जिनके अंदर मैं ना हो, मैं ना हो, मैना। सो नो ईगो एंड नो माइंड, नो ईगो एंड नो माइंड। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट, श्रद्धा का रूप मतलब पार्वती।
पार्वती का रूप मतलब ये वो पार्वती हैं जिन्होंने सती रूप में भगवान शंकर को एक बार खोया है। किसकी वजह से? बुद्धि और ईगो की वजह से। उन्होंने बोला मैं पुत्री हूं, मैं जा सकती हूँ। ईगो, बुद्धि की वजह से उन्होंने क्वेश्चन किया हर चीज। बुद्धि की वजह से उन्होंने बात नहीं सुनी। बुद्धि की वजह से उन्होंने विश्लेषण किया। सो ये वो पार्वती हैं जिन्होंने बोला अगले जन्म में भगवान मुझे बुद्धि मत देना, जड़ बना देना, और ईगो मत देना। तो वो किसकी पुत्री हुई? हिमवान, पर्वतराज और मैना। फिर उनके गुरु हुए। जब वो छोटी थी तो उनके घर में नारद ऋषि आए, और नारद ऋषि ने उनका हाथ पढ़ा। जैसे सब बच्चों का बचपन में कुंडली बनती है, हिमवान और मैना ने भी, नारद ऋषि आए तो उनसे बोला इस बच्ची के बारे में कुछ बताइए। तो उन्होंने बोला कि सब तो लड़की बहुत शानदार है, बहुत अच्छी लड़की है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत गुण है इसके अंदर और सबका कल्याण करेगी, मगर एक जो दोष मुझे दिख रहा है उसको ठीक करने का उपाय भी है। ये लड़की जिससे शादी करेगी उसके पास, वो वैरागी होगा, उसके पास कुछ नहीं होगा, कपड़े भी ठीक से नहीं पहनेगा। हम्म, और कोई घर बार नहीं होगा, कोई राज्य नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसे वैरागी से शादी करेगी जिसके साथ भूत प्रेत विचरण करते हो, ऐसे वैरागी से। तो ऐसे वैरागी जो दुनिया की नजर में नीचे नहीं ऊपर है, वो तो सिर्फ भगवान शंकर हैं। और भगवान शंकर तो समाधि में है, और उनसे शादी कर ले तो इसका जो ये दोष दिख रहा है शादी का, ये ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही बोलते हैं ना एस्ट्रोलॉजर, क्यों शालिनी? है तो दोष तो है, पर अगर अब ये डिफरेंस है एक सांसारिक जो ज्योतिष है और नारद ऋषि की जो ज्योतिष वाणी है, उसमें यही डिफरेंस है। अगर आप संसार के किसी ज्योतिष के पास जाएंगे, यानी एस्ट्रोलॉजर, तो वो आपको बताएगा ये गलती है, 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 ये गलती। आप सुनने जा रहे हैं कि अच्छा क्या है, और वो बताएगा ये दोष है, ये दोष है, ये दोष है, क्योंकि आप जीवन में आए तो दोष ही दोष है, अच्छा थोड़ी है कुछ इसमें। सो नारद ऋषि ने कहा दोष, दोष तो है, पर उसमें से गुण क्या निकल सकता है? एक अ, भक्त जो ज्योतिष कर रहे हैं वो दोष नहीं देखते, वो दोष के अंदर गुण देखते हैं। हम्म, वैराग्य नहीं देख रहे हैं, वैराग्य में शिव जी देख रहे हैं। सो ये एक बहुत कीन ऑब्जर्वेशन। एनीवेज, तो उन्होंने बोला ये सारे गुण भगवान शंकर के अंदर हैं, आप अपनी बेटी को, और वो समाधि में है, आप इनको अगर तपस्या कराएं तो इनकी तपस्या हो जाएगी, और ये भगवान शंकर अगर मान जाएं तो इनसे शादी करने के लिए, तो ये जो वैसे दोष है इससे बड़ा सुख कोई संसार को नहीं मिल सकता, इससे बड़ा अच्छा पावन काम नहीं हो सकता। और अगर ये हो जाए तो बहुत बड़ा काम। तो नारद ऋषि ने प्रेरणा दी, नारद ऋषि उनके गुरु, और उन्होंने बोला, तो छोटेपन से ही, बचपन से ही
5-6 साल की उम्र से ही पार्वती ने तपस्या करनी शुरू करी। माता ने मना भी किया, परेशान भी हुई मीना, मगर उन्होंने तपस्या करनी शुरू की। और बाद में जो भी हुआ, और भगवान शंकर से उनकी शादी हो गई। अब शादी से पहले जब बहुत तपस्या हो गई माता की, तो भगवान शंकर ने सप्त ऋषि को बुलाया, ऋषियों को बुलाया। उन्होंने कहा तपस्या तो पूरी हो गई, तपस्या तो कोई भी कितनी भी करे एक टाइम के बाद तो पूरी हो जाती है, और शंकर भगवान तो जल्दी तक खुश हो जाते हैं। तो माता से इतनी तपस्या करवाई, और इतनी तपस्या के बाद तो जो ठीक है, पर वो तो सती चली गई थी, उनको शादी नहीं करनी थी। तो उन्होंने सप्तऋषि को बोला जाओ और इसका मन बदल दो। हम्म, मैं तो सबको ही देता हूँ, देना तो पड़ेगा ही, पर तुम इसका मन बदल दो। आप इसको जाके प्रेरणा दो कि ये कहाँ किस झंझट में बैठ रही है, तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो सारे सप्तऋषि गए और उन्होंने बोलना शुरू किया माता को कि आप ये क्या प्रण ले लिया, आप इसको छोड़ दीजिए, हम आपकी शादी नारायण से करा देंगे, तपस्या की भी जरूरत नहीं है, नारायण खुद आके शादी कर लेंगे। हम्म, तो माता ने मना कर दिया। फिर बोले अच्छा कौन है आपके गुरु, बोले नारद ऋषि। तो आपके गुरु को बुलाते हैं, वो बोलेंगे आपको 10-15 बार बोलेंगे, जितनी बार बोलोगे बोलेंगे कि नारायण से शादी कर लो, तो आप नारायण से शादी कर लेना। गुरु ने बोला हुआ है ना, गुरु की बात मान रहे हो, है ना? तो ठीक है, शंकर भगवान को बुला देते हैं, वो बोले कि तुम किसी और की पूजा कर लो, किसी और से शादी कर लो, वो मना कर दे, तो आप अपना प्रण छोड़ दो। माता ने बहुत ही ह्यूमिलिटी से, बहुत ही प्यार से हर दलील, हर जस्टिफिकेशन, हर आर्ग्यूमेंट सप्त ऋषियों का छोड़ दिया, बोला नहीं। भक्ति के मार्ग में कोई भी आए तो, ये हमारे लिटरेचर से बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, शालिनी ध्यान से सुनना। माता ने बोला कि गुरु भी अगर बोलेगा मुझे तो मैं बात नहीं सुनूंगा। बलि ने बोला, राजा बलि ने बोला गुरु भी बोलेगा तो मैं बात नहीं सुनूंगा, सामने भगवान है। विभीषण ने बोला बड़ा भाई भी बोलेगा तो मैं बात नहीं सुनूंगा, सामने भगवान है। भरत ने बोला माता भी बोलेगी तो मैं बात नहीं सुनूंगा, सामने भगवान है। प्रहलाद ने बोला पिताजी भी बोलेंगे तो मैं बात नहीं सुनूंगा, सामने भगवान है। So very important that all our material relationships are important. They're very good. They're very important in our lives. But the role and goal of every relationship is to lead you towards the divine. Anytime that criteria is not being met, तो माता भगवान से बड़ी होती है तो वो क्राइटेरिया नहीं है। माता भगवान से बड़ी तब होती है जब माता भगवान के पास लेके जाए। पिता भगवान से बड़े होते हैं, पिता भी भगवान से बड़े होते हैं अगर वो भगवान तक लेके जाए। गुरु भगवान से बड़े होते हैं, वो भी भगवान से बड़े होते हैं, उनकी पूजा होनी चाहिए अगर वो भगवान तक लेके जाए। बड़े भाई बहन भगवान से बड़े होते हैं, बिल्कुल होते हैं, अगर वो भगवान तक लेके जाए। और अगर इनमें से कोई भी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आपके और भगवान के बीच में आ रही है, तो उसको छोड़ने में कोई धर्म संकट नहीं होना चाहिए। नॉट रिक्वायर्ड। फिर सोचना नहीं ये गुरु है, ये पति है, ये है, ये वो है ना? खैर, सो माता ने
सब मना कर दिया और अल्टीमेटली उनकी शादी हो गई भगवान शंकर के साथ। ये ब्रीफ में कहानी कि श्रद्धा कौन? श्रद्धा माता पार्वती। और माता पार्वती कौन? हिमालय की और मैना की पुत्री। और साथ में क्या कैरेक्टर है? गुरु भी है उनके पास। कौन गुरु? नारद ऋषि। और सबको छोड़ दिया उन्होंने। घर छोड़ दिया बचपन में, तपस्या के लिए जंगल में चली गई। गुरु की बात भी नहीं मानी। एक पॉइंट आ गया जब सप्त ऋषियों ने बोला कि तुम इनकी भी बात छोड़ दो, नहीं मानी, सब छोड़ दिया। ये श्रद्धा का स्वरूप है। श्रद्धा कहाँ से आती है? श्रद्धा कैसी दिखती है? श्रद्धा क्या होती है? श्रद्धा का प्रीवियस इनकारनेशन बुद्धि है। बुद्धि से श्रद्धा शुरू होती है, मगर बुद्धि छोड़नी पड़ती है। उसकी जर्नी वहां से शुरू होती है जरूर, मगर फिर उसको छोड़ना पड़ता है। और बुद्धि छोड़ने के बाद, ईगो छोड़ने के बाद, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन छोड़ने के बाद, then you arrive at this coveted श्रद्धा। भगवान शंकर ने रामायण की रचना की और रचना करके अपने मन में रख ली, मस्तिष्क में। किसी को बताया नहीं, क्योंकि बताने के लिए, बोलने के लिए, कहानी रचने के लिए विश्वास चाहिए, देखने के लिए, और उसको बोलने के लिए सामने वाले के अंदर श्रद्धा चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं होगी, कोई बुद्धि से सुनेगा तो थोड़े दिन तो साथ रह सकता है, मगर थोड़े दिन के बाद वो साथ टूट जाएगा। विश्वास के साथ साथ छूट जाएगा अगर आप बुद्धि से काम करेंगे, विश्वास के पास बुद्धि से आएंगे, तो आपका रिलेशनशिप लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं हो सकता। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? डू यू अंडरस्टैंड दिस? सती माता का रिलेशनशिप भगवान शंकर के साथ, विश्वास कौन है? भगवान शंकर। सती माता बुद्धि। सती माता का रिलेशनशिप भगवान शंकर के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं हो सकता। सो योर फेथ और विश्वास, if it is based on your ego or your mind, then you will lose it. It is not in the right space altogether. तो जो कोई बोल रहा था ना कि हमें मिलता जाएगा तो हमें विश्वास बढ़ता जाएगा, हमें मिलता जाएगा तो हमें विश्वास बढ़ता जाएगा, अगर इस बुद्धि से तुमने विश्वास रखा है तो ये विश्वास पक्का टूटेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। माइथोलॉजी हमें बताती है कि ये पक्का, इसको तो पूरा ही दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, सती होना पड़ेगा। ये विश्वास ऐसे टूटेगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे, है ना। अगर किसी को लगता है भगवान सब ठीक करेंगे तो मेरी कहानी याद रखना, भगवान सब ठीक नहीं करेंगे। अच्छा खासा of 38-year-old brother who loses, भगवान ठीक नहीं करते। विश्वास मत रखना कि भगवान कुछ ठीक करेंगे, पर भगवान फिर भी गोल है। अगर बिना इसके तुम उसको पकड़ सकते हो, बिना बुद्धि के तुम उसको पकड़ सकते हो, बिना इस लॉलीपॉप के तुम पकड़ सकते हो भगवान को, तो ही श्रद्धा है, वरना श्रद्धा नहीं है। कोई कैरेट नहीं मिलने वाला, आज मिल जाएगा, कल फिर ऐसा गिरोगे कि समझ में ही नहीं आएगा कहां से गिरे।
जैसे सती ना, जैसे सती के साथ हुआ, सडनली शी रियलाइज, ओ माय गॉड, पूरा ही जलना पड़ा। सो विश्वास के साथ, फेथ के साथ रिलेशनशिप सिर्फ श्रद्धा की ही लॉन्ग टर्म है, बुद्धि की लॉन्ग टर्म नहीं हो सकती। पॉसिबल नहीं। फलस्तुति पढ़ के जो चैंटिंग कर रहा है उसकी रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म नहीं है, उसको छोड़ना ही पड़ेगा। आज नहीं, वो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कहा गया गया कहानी में कि पहला जन्म नहीं था, पहला जन्म था। सती माता थी। और अगर आज हमारे अंदर सिर्फ बुद्धि की कैपेबिलिटी है तो दैट इज ओके, दैट इज नॉट अ बिग डील। बट श्रद्धा समझने के लिए आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि ये थोड़ा उससे ऊपर का काम है। इसके लिए बुद्धि बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी, ग्रीड बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी, एक्सपेक्टेशन बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी। एक ही ध्येय है, एक ही गोल रहना चाहिए लगातार। और उसके बीच में कोई आए तो रिलेशनशिप भी छोड़नी पड़ेगी, चाहे वो माँ बाप, भाई बहन, पिता माता, पति, बच्चा, कोई भी हो। तब देन यू हैव श्रद्धा। या एनी क्वेश्चंस? नो? समझ में आया? नीचे गिर गया सारा? गया ना। काम ही ऐसा है कि छलनी के ऊपर आटा डालते जाओ, एक्सपेक्ट करो कि यहाँ पर माउंटेन बनेगा आटे का। चलो, alright guys, I think that's a good starting point, and we can do recaps next time. And if you have any questions, you can ask me next time. All right. I briefly shared the story. If somebody still has mythological questions, because some of you don't have, like Sonal or Suruchi, don't know these stories, I briefly did share the story, and I'm sure you guys have been with me long enough to have heard references to it. If you still haven't understood it, go buy Amar Chitrakatha. Go buy some comic books and read your stories up. At least background information you will get. So Suruchi, please, if you haven't read any of there is a whole section, gods and goddesses, in Amar Chitrakatha. Please get that and please read it. It is very entertaining, very fun. You will go through it in like 2 hours or 3 hours, the whole segment, unless you sit and think. But it is a good introduction to stories of all our mythology. Of course, stories are just stories, and don't start reading them. Again, I will say, don't start reading them with judgment. Yeah. कि हमने देखा कि वृंदा से भगवान नारायण ने शादी कर ली, जबरदस्ती उसका व्रत तोड़वा दिया। अब ये तो, या राम जी ने माता सीता को घर से निकाल दिया। हमें समझने के लिए, इसके लिए जो आंखें चाहिए वो हमारे पास है नहीं, बुद्धि से कुछ चीजें समझी नहीं जा सकती। So, but at least read the stories. You will develop the ability to understand nuances of mythology, because mythology is actually philosophy, not really mythology. And the nuances are there for those reasons and cannot be explained socially as to why something happened. So, if you don't know the stories, please, these are complicated stories with many, many aspects to it. So go back and read your Amar Chitrakatha. It's a very good place to start.
All right. Have a nice week. I'll see you next week. We will continue this discussion because both these aspects are very important to understand. And they help. Why we are discussing this is because we have to understand कि कहानी बोल कौन रहा है और कहानी सुननी कैसे चाहिए. Because unless we become eligible with Shraddha to be able to listen to the story, our lot will be like Sati. गलती हो जाएगी हमसे और फिर उसका भुगतान I don't want you guys to suffer. वो ईगो और बुद्धि के साथ जीना बहुत ज्यादा सफरिंग है उसमें. प्लीज मत करिएगा. So that's why I know you guys are anxious and we haven't started anything, but please bear with me, have patience. There is a reason why we haven't. We are trying to get rid of the buddhi here in this space, so that you guys don't have to go through Sati's lot. And you're able to stay with Lord Shiva. Yeah. All right. I didn't end up telling you the story that came before this, which was Bharadwaj Rishi and Yajnavalkya, but I'll get to it next time. All right. Have a nice week. I'll see you next week. Namaste. Namaste, नमस्ते Didi. दीदी।